So friends, in the previous part we have seen the Coulomb's law and its basics. So what we have actually understood in that topic, I should summarize it very speedily, briefly. So in the Coulomb's law, as it is stated, the force between 2 point and steady charge, stationary charge, the force between two stationary point charge is proportional to the product of the charge, the magnitude of charge, and inversely proportional to the square of the distance between them. Hence we got the equation F is equal to, by putting Coulomb's constant, it is k q1 q2 by r square. Okay, so this is what we have seen here. The k is called the Coulomb's constant for free space, or say vacuum. It is constant for vacuum, and we have assumed here the two charge has been placed in space, and in that case the value is very practically 9 into 10 raised to 9 Newton meter square per Coulomb square. Okay, furthermore we discussed that here the k can be replaced as k is equal to 1 by 4 pi epsilon naught, or say epsilon 0, and here the epsilon 0, it is called the permittivity of vacuum. It is called the permittivity. Okay, and the value for epsilon naught, it is 8.854 into 10 raised to minus 12. Okay, and the unit is very inverse of this one, so it is Coulomb square per Newton meter square. So by replacing k as 1 by 4 pi epsilon naught, we get equation F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught. This is for the simplification. Okay, we will see further after 2-3 later. We will see this can be useful. It is then q1 q2 by r square. Okay, so by using the permittivity we get equation such this. Here this force is applicable when 2 point charges are placed in vacuum, but if the point charges are placed in medium, then the force, say Fm, is equal to the force F by k. Here is a capital K, must remember this one. The force, this force F is the force in the free space by डिवीजन में है k का मतलब क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ओके, k जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, वो है एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट. ओके, तो एप्सिलॉन जो है वो मीडियम की परमिटिविटी है, एनी मीडियम की परमिटिविटी बाय द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. So this is called relative permittivity or called dielectric constant K. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का यूनिट नहीं बनता, वो वैल्यू होती है 1, 2, 3, 4 ऐसी वैल्यू होती है किसी भी मीडियम के लिए. सो दिस इज Coulomb's law and very similar to the gravitational law. So there are some similarity and difference between gravitational law and the Coulomb's law. So let me tell you this thing. Okay, so say gravitation. Okay, gravitation and say electrical force. दोनों में सिमिलरिटी क्या है और डिफरेंस क्या है उसकी बात करते हैं. तो ग्रेविटेशन का जो लॉ है वो एफ इनवर्स स्क्वायर लॉ है, मतलब उसमें एफ प्रोपोर्शनल 1 बाय आर स्क्वायर उसमें भी आता है. ओके, वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स में प्रोपोर्शनल है. सिमिलरली इलेक्ट्रिकल फोर्स
इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू 1/r², ये सिमिलैरिटी है। ओके, दूसरी बात है कि ग्रेविटेशन में भी जो मास है उसका प्रोडक्ट में प्रोपोर्शनलिटी होता है, m1 m2। सिमिलरली यहाँ पर भी q1 q2 होता है। ओके, सो दैट इज़ फाइन। और बात है कि जो ग्रेविटेशन का लॉ है उसमें जो फोर्स है वो एट्रैक्टिव है, मतलब दो पार्टिकल है उसके बीच में जो फोर्स होगा वो एट्रैक्टिव ही रहेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज एट्रैक्टिव, बट इलेक्ट्रिकल फोर्स इज आइदर बी एट्रैक्टिव और रिपल्सिव डिपेंडिंग ऑन देयर लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस। से पॉजिटिव चार्ज है दोनों तो रिपल्सिव फोर्स रहेगा। ओके, सिमिलरली दोनों नेगेटिव चार्ज है तो भी रिपल्सिव फोर्स रहेगा। अगर पॉजिटिव एंड नेगेटिव है तो एट्रैक्टिव फोर्स रहेगा। सो दिस इज आइदर पॉजिटिव और एट्रैक्टिव, तो ये डिफरेंस है उसके बीच में। दूसरी बात है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, मस्ट रिमेंबर दिस वन। द ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, यू नो दैट। हम जो इक्वेशन लिखते हैं फोर्स का उसमें जो g आता है दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल कांस्टेंट। वो किसी भी प्लेनेट पे जाएंगे, पूरे यूनिवर्स में किसी भी प्लेनेट किसी भी स्टार के लिए अगर कैलकुलेशन करते हैं तो g है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, बिकॉज इट इज़ नॉट डिपेंडेड ऑन मीडियम। बट वेरी ऑपोजिट टू दैट, इसमें जो कांस्टेंट होता है k और से 1/4πε0। ओके, तो इसमें जो कांस्टेंट है वो मीडियम पर डिपेंडेड है, मतलब आपके जो दो चार्ज है वो वैक्यूम में है और किसी मीडियम में प्लेस किए हुए हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो है फोर्स चेंज होगा। ये मीडियम पर डिपेंडेड नहीं है, ये मीडियम पर डिपेंडेड है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द लास्ट थिंग इज ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो वेरी वीक है, इट इज़ वेरी वीक और से वीकेस्ट फोर्स इन यूनिवर्स। ओके, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स इलेक्ट्रिकल फोर्स है। इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है वो उससे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओके, मतलब कि आपको ग्रेविटेशनल फोर्स फील करना हो तो आप फील नहीं कर सकेंगे, पर इलेक्ट्रिकल फोर्स फील करना हो तो आप कर सकेंगे। जैसे कॉम्ब, अगर ड्राई हेयर में कॉम्ब जो लगाने के बाद अगर पेपर्स की स्ट्रिप्स हो उसके पास लगे अट्रैक्ट होगा, तो वो जो है हम फील कर सकेंगे वेरी प्रैक्टिकली। बट जो ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज़ वेरी वीकेस्ट एंड हैंस वी जस्ट कैन feel it. Okay, so this is some kind of similarity and the difference between gravitational force and electrical force, so must keep in mind that. Now next portion, the Coulomb force. We have seen the electrical force or say Coulomb's law. So you know, so far the force is vector quantity and it matters, magnitude and direction both matters. So both matter and hence the equation F is equal to K Q1 Q2 by R square. So this equation is only scalar equation. We did not discuss about the direction. So far the force is vector quantity, then here we have to build up the equation that can give us the direction, also the magnitude and direction. So the next IMP theory is the Coulomb's law in vector form. Okay, Coulomb's law in vector form. So this is the next IMP theory and we are going to discuss this one. So first theory is Coulomb's law in scalar form that we have seen in previous video. Now Coulomb's law in vector form. So here consider that we have 2 point charges Q1 and say Q2. These are 2 point charges
and these point charges are placed in a space, a free space, okay, not a medium per se vacuum. So to discuss this theory and to understand this theory you must have the knowledge of the vector. So vectors जो है उसकी स्टडी हमने 11th में की थी, तो आपको वो याद होनी चाहिए. यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं, डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, किसी वेक्टर का नेम अगर डिसाइड करना है तो कैसे करते हैं, वो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, तो इसमें इजी रहेगा. सो अज्यूमिंग दैट यू रिमेंबर व्हाट वी हैव लर्न इन द 11th चैप्टर द वेक्टर सेंस ऑफ. यहाँ पर दोनों जो पॉजिटिव चार्ज है वो फ्री स्पेस में हमने रखे हैं कोई सर्टेन पॉइंट के पास. तो पहली चीज़ है वो हमें चाहिए पोजीशन, कि इसकी पोजीशन क्या है, हम कैसे फाइंड कर सकेंगे कि एक Q1 जो चार्ज है वो कहाँ पर रखा है, Q2 चार्ज कहाँ पर रखा है. तो उसके लिए हमें कार्टेशियन सिस्टम चाहिए. तो हम यहाँ पर 2 डिमेंशन में कार्टेशियन सिस्टम लेते हैं. ओके, सो यहाँ पर जो है ये x एक्सिस है, दिस इज़ द x एक्सिस, दिस इज़ y एक्सिस. तो जो z एक्सिस है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वी कैन अज्यूम दैट. सो यहाँ पर 2 डिमेंशन में दोनों जो चार्ज रखे हमने उसकी पोजीशन जो है वो ओरिजिन को रेफरेंस में लेके डिसाइड करते हैं. तो उसके लिए हमें पोजीशन वेक्टर चाहिए, पोजीशन डिफाइन करने के लिए पोजीशन वेक्टर चाहिए. सो द पोजीशन वेक्टर ऑफ द चार्ज Q1 एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2. सो ये जो वेक्टर है वो पोजीशन डिसाइड करेंगे कि भी हमारे चार्ज कहाँ पर है. जैसे कि Q1 है उसका पोजीशन वेक्टर से R1 है, ओके, और जो Q2 है उसका पोजीशन वेक्टर जो है से R2 है, ओके. सो विथ रेफरेंस टू ओरिजिन, ओरिजिन जो है उसके रेफरेंस में Q1 Q2 के पोजीशन वेक्टर. पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं, जैसे R2 तो उसकी वैल्यू रहेगी कि भाई 1 2 5 ऐसे उसकी वैल्यू रहेगी. पता चलेगा कि x में वैल्यू 1 है, y में वैल्यू 2 है, z में वैल्यू 5 है. तो यहाँ पर जो वैल्यू रहेगी वहाँ पर Q2 चार्ज रखा है, ऐसे Q1 चार्ज रखा है. तो ये जो पोजीशन वेक्टर है दे आर यूज टू डिसाइड द पोजीशन. नाउ सपोज ये जो चार्ज Q1 है वो Q2 पर फोर्स लगाएगा और Q2 है वो Q1 पर फोर्स लगाएगा अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. दोनों जो चार्ज है वो फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पर. तो यहाँ पर हम समझते हैं कि वो फोर्स जो है वो इस लाइन पर रहेगा. चलो समझो कि ये जो Q1 चार्ज है उस पर Q2 चार्ज फोर्स लगाएगा और Q2 पर Q1 फोर्स लगाएगा. चलो तो Q2 जो चार्ज है वो Q1 पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इस तरफ, और Q1 है वो Q2 पर फोर्स लगाएगा इस तरफ. दोनों ऑपोजिट में है, सो वो बन गए रिपल्सिव फोर्स. हमें डिसाइड करना है, हम यहाँ पर जो फाइंड करने जा रहे हैं वो ये है कि समझो फोर्स ऑन चार्ज Q1, फोर्स ऑन चार्ज Q1 बाय चार्ज Q2. तो यहाँ पर हमें फोर्स डिसाइड करना है कौन से चार्ज पर, Q1 चार्ज पर, किसके द्वारा, किसके कौन फोर्स लगाएगा Q2. तो Q2 जो है वो Q1 पर फोर्स लगाएगा, उसका नाम हम रखेंगे द फोर्स और चार्ज Q1. कौन से चार्ज पर, तो फर्स्ट चार्ज पर Q1. कौन सा चार्ज फोर्स लगाएगा 2, तो 2, तो नाम हमारा फोर्स का रहेगा F12. सपोजली जो Q1 है वो Q2 पर फोर्स लगाएगा तो उसका नाम रहेगा F21. तो ये जो फोर्स है उसका इक्वेशन बनेगा K द कांस्टेंट Q1 Q2 द बोथ चार्जेस बाय R². बट द इक्वेशन इज नॉट येट फुलफिल्ड. डायरेक्शन भी हमें यहाँ डिसाइड करनी है और डिस्टेंस भी डिसाइड करना है. तो यहाँ पर जो R डिस्टेंस है वो कौन सा डिस्टेंस है,
तो Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस है, तो वो डिस्टेंस भी हमें डिसाइड करना है। चलो उसका नाम हम रख देते हैं कि 1 एंड 2 के बीच का डिस्टेंस, उसका नाम हम रख देते हैं 1 2, R12 स्क्वायर। R12 मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज Q1 एंड Q2। ओके, सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट, बट दिस इज द मैग्नीट्यूड ओनली। ये जो वैल्यू है उसमें तो हमें वैल्यू मिलेगी, मतलब एक्सप्रेशन है उसमें तो हमें वैल्यू मिलेगी। हमें वेक्टर फॉर्म चाहिए, F12 वेक्टर चाहिए। तो यहाँ पर सामने भी राइट साइड में भी कुछ वेक्टर का लिखना है हमें, समझो। तो ये जो Q2 चार्ज है वो Q1 पर फोर्स लगा रहा है, समझा आपने। यहाँ पर द फोर्स ऑन चार्ज Q1 बाय Q2, और वो जो फोर्स है वो रिपल्सिव है इस डिरेक्शन में। तो हमें पहले ये वाली जो डिरेक्शन है उसका कोई वेक्टर चाहिए। चलो, तो हमें ये वाली जो डिरेक्शन है उसका कोई वेक्टर चाहिए। तो ये वाला जो वेक्टर है, चलो ये वाला वेक्टर समझो आप, ये वाला वेक्टर है उस डिरेक्शन में जा रहा है। कौन सी? फोर्स वाले डिरेक्शन में। कौन सा फोर्स? F12 वाला फोर्स। ये F12 वाला फोर्स है, फोर्स ऑन चार्ज Q1 बाई Q2। ओके, तो ये जो फोर्स है उसकी डिरेक्शन में ये वेक्टर हमने डिसाइड किया। चलो, ये जो वेक्टर है उसका नाम क्या रखते हैं? तो वेक्टर जो होता है उसका फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। आपको हमेशा किसी भी चीज़ में हम देखेंगे, फिजिक्स में और किसी भी सब्जेक्ट में, तो जो वैल्यू हम फाइंड करते हैं वो ऑलवेज क्या होती है कि फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, एंड दैट विल गिव यू द डिफरेंस। सो ये जो वेक्टर है यहाँ पर, उसके लिए हमें नाम रखना है। तो ये जो वेक्टर है कहाँ से निकलता है? तो इनिशियल पोजीशन कौन सी है उसकी? तो R2 से निकलता है, और कहाँ पर जाता है? तो R1 में जाता है। तो इसका जो ये जो वेक्टर है उसका नाम रहेगा फाइनल पोजीशन। सो R1 वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन कौन सी थी? R2। तो ये वेक्टर जो है हमारा, ये वाला वेक्टर, चलो उसको मैं ब्लैक में डिनोट करता हूँ। ये वाला वेक्टर समझो आप, ये वाला, सॉरी, ये वाला जो वेक्टर है उसकी बात करते हैं। तो वो वेक्टर है उसका नाम रहेगा R1 माइनस R2। कैसे? तो फाइनल पोजीशन मतलब R1 में एंडिंग होता है, माइनस इनिशियल पोजीशन R2 से ओरिजिनेट होता है। तो ये जो वेक्टर उसका नाम हो गया, और उसको हम इजीली डिनोट करना चाहेंगे तो ऐसे उसको डिनोट कर सकेंगे। इसका नाम अगर हमें रखना है तो ओके, इसका नाम अगर हम रखते हैं वेरी इजीली और शॉर्ट में रखते हैं तो R1 माइनस R2, तो उसको हम बोलेंगे R12 वेक्टर। चलो, तो ये वाला जो वेक्टर है उसका नाम अब हम क्या रखेंगे? R12 वेक्टर। सो R12 अगर लिखा है तो आपको मालूम हो जाना चाहिए कि वो R1 माइनस R2 है। सिमिलरली RXY लिखा है तो आपको मालूम हो जाना चाहिए कि वो RX माइनस RY है, तो वो इजी रहेगा। ओके, अब हमारा जो फोर्स है वो कौन से वेक्टर की डायरेक्शन में है? तो हम बोलेंगे R12 वेक्टर की डायरेक्शन में है, राइट, इस तरफ। तो उसका इस R12 के डायरेक्शन में जाने वाला कोई यूनिट वेक्टर हमें चाहिए। यूनिट वेक्टर जो होता है उसका, चलो पहले मैं बता दूं ये यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो यूनिट वेक्टर है उसकी वैल्यू 1 होती है, आपको पता है। तो कोई भी यूनिट वेक्टर हम लेते हैं R कैरेट और R कैप हम उसे बोलते हैं। तो R कैरेट कोई भी यूनिट वेक्टर है, उसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे वेक्टर बाय इट्स वैल्यू। सो R बाय इट्स वैल्यू R, सो दिस विल गिव यू द यूनिट वेक्टर। और ये जो है उसकी वैल्यू ऑलवेज कितनी रहती है? 1, क्योंकि इसका जो यूज़ होता है वो डायरेक्शन बताने के लिए, डायरेक्शन डिनोट करने के लिए होता है। तो यूनिट वेक्टर जो है वो डायरेक्शन डायरेक्ट करने के लिए होता है। और उसे कैसे बताते हैं? तो R वेक्टर बाय इट्स वैल्यू। ओके, ये तो वैल्यू है, पर समझो कि R12 ये कोई यूनिट वेक्टर है। ओके, तो उसकी वैल्यू ऐसे रहेंगी R12 वेक्टर बाय इट्स वैल्यू। इट्स वैल्यू मीन्स R12, दिस इज जस्ट सिंपल वैल्यू। ओके, अगर R12 नहीं लिखना है तो R12 वेक्टर की वैल्यू मॉड्यूलस ऑफ R12 ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, और अदरवाइज R12 वेक्टर जो है उसे हमने अभी बताया कि उसे कैसे लिख सकते हैं। तो R1 माइनस R2 ऐसे भी लिख सकते हैं।
ये जो है वो R12 वेक्टर का लॉन्ग फॉर्म है, और नीचे भी ऐसे भी लिख सकते हैं R12 वेक्टर, और उसकी वैल्यू हमें चाहिए डिनोमिनेटर में, तो उसका मॉड्यूलस द मोड। ओके, तो ये जो बातें थी वो 11th में आपको सिखाई गई थी। और उस तरह से अगर हम देखेंगे तो हमारा जो फोर्स है इस डायरेक्शन में जाने वाला, उस तरफ का हमें यूनिट वेक्टर चाहिए। तो उस तरफ का जो वेक्टर है वो R12 है, तो उस तरफ का यूनिट वेक्टर R12 कैरेट हम ले सकते हैं। R12 कैरेट मीन्स व्हाट? द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ R12 वेक्टर। तो अब हमारा जो फोर्स का इक्वेशन था के Q1 Q2 R12 स्क्वायर, तो ये जो फोर्स है कौन सी डायरेक्शन में है? तो ये फोर्स है वो R12 कैरेट की डायरेक्शन में है, तो हम लास्ट में लिख सकते हैं R12 कैरेट। हो गया हमारा स्केलर वेक्टर फॉर्म हो गया, स्केलर से वेक्टर हो गया। ये जो है के Q1 बाय R12 स्क्वायर ये वैल्यू बताती है, और लास्ट में जो है R12 कैरेट वो डायरेक्शन बताता है, तो ये वेक्टर फॉर्म हो गया। ओके, यहाँ पर जो ये यूनिट वेक्टर है R12 कैरेट, अभी मैंने बताया इस तरफ से ये यूनिट वेक्टर है, और उसे हम और भी आगे कैसे लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं R12 वेक्टर बाय इट्स वैल्यू R12, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। ओके, चलो अगर ये वैल्यू जो है इस जगह हम लिखेंगे तो आगे हमारा इक्वेशन क्या होगा? तो आगे जाके हमारा इक्वेशन द फोर्स ऑन चार्ज 1 बाय चार्ज 2 दैट वी आर डिस्कसिंग, इट इज एज वी डिस्कस्ड के Q1 Q2 बाय R12 स्क्वायर, और जो यूनिट वेक्टर है उसको रिप्लेस करते हैं R12 वेक्टर बाय इट्स वैल्यू R12। अगर हम ऐसे लिखते हैं तो नीचे जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसमें R12 स्क्वायर एंड ऑल्सो R12, सो दिस विल मेक इन द डिनोमिनेटर इट इज R12 क्यूब। तो डिनोमिनेटर में जो है वो R12 क्यूब, तो ये दूसरा भी इक्वेशन हो गया के Q1 Q2 बाय R12 क्यूब R12 वेक्टर। ओके, ये वाला इक्वेशन हो गया, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये R12 है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं, तो R12 वेक्टर है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? तो R12 जो है उसकी जगह हम ऐसा भी लिख सकते हैं R1 माइनस R2, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, सो ये जो फॉर्म्स है वो अगर हमें किसी जगह पर वेक्टर कैलकुलेशंस करना हो तो ये जो फॉर्म्स है उसका यूज़ करेंगे, और मैं सजेस्ट करूँगा कि हम ये लास्ट वाला जो फॉर्म है वो यूज़ करेंगे। अगर ये यूज़ करना है तो हमारा कैलकुलेशन भी इजी रहेगा। चलो समझो अब दूसरी बात कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स चार्ज Q1 पर है, और कौन फोर्स लगाता है? तो चार्ज Q2 जो है वो Q1 पर फोर्स लगाए। चलो अब हम ऑपोजिट में सोचते हैं, Q1 जो है वो Q2 पर भी उतना ही फोर्स लगाएगा। चलो Q1 जो चार्ज है वो Q2 पर फोर्स लगाएगा, तो उसके लिए क्या इक्वेशन बनेगा ये देखने के लिए पहले ये वाला इक्वेशन देख लो, हमने जो अभी बात की वो। तो अभी हमने जो बात की इक्वेशन में कि 1-2 अगर है फोर्स 1-2, तो सभी जगह हमें 1-2 लिखना है, राइट? यहाँ पर भी देखिए फोर्स 1-2 है तो 1-2 1 माइनस 2, सो 1-2। तो ऐसे अगर हम सोचेंगे तो ये जो Q1 है वो Q2 पर जो फोर्स लगाएगा उसका इक्वेशन अगर हमें लिखना है तो हमारा इक्वेशन बनेगा द फोर्स ऑन चार्ज Q2 बाय कौन सा चार्ज? बाय फर्स्ट चार्ज बाय 1। सो अगर ये इक्वेशन लिखना है तो हमें सिर्फ सामने लिख देना है कि ये 2-1 है, तो सामने भी यहाँ पर तो कुछ भी लिखो Q2 Q1, और जो नीचे लिखना है उसमें क्या लिखना है? R21 स्क्वायर, और सामने R21 कैरेट। ओके, हो गया हमारा इक्वेशन। सो दिस इज द फोर्स ऑन Q2 बाय चार्ज Q1। ओके, यहाँ पर जो 2-1 हमने यूनिट वेक्टर में लिखना है,
उसको अगर हम एक्सपांड करेंगे, उसकी वैल्यू अगर हमने लिखनी है तो क्या लिख सकेंगे कि चलो Q2 Q1 दैट इज ओके, Q2 Q1 बाय R21 स्क्वायर। सो यहाँ पर यूनिट वेक्टर जो है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, R21 है तो R2 माइनस R1, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर बाय इट्स वैल्यू R21 इट्स वैल्यू अगर यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्यूब हो जाएगा, जैसे यहाँ पर हमने देखा। तो ये जो था वो वेक्टर कैलकुलेशंस जो होगा फोर्स का उसके लिए हम चाहिए। और हमने यहाँ पर जो देखा दोनों फोर्स इक्वल वैल्यू के और ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो हम ये भी बता सकते हैं कि F12 द फोर्स is equal to the F21 force, but both are in opposite direction, so minus F21. So this gives the idea that this also follow the Newton's third law of motion. So ये जो थियरी है वो हमें यहाँ पर देखनी है, IMP में आपको नोटबुक में भी लिखनी है और मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। तो क्वेश्चन रहेगा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओके, तो क्या लिखना है आपको यहाँ पर ये पहला सेंटेंस लिखना है, द फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी सो द कूलम्ब्स लॉ कैन बी रिप्रेजेंटेड इन वेक्टर फॉर्म एज फॉलोज। और आपको ये जो फिगर है वो ड्रॉ करनी है, ये वाली फिगर ओनली। ओके, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव फोर्स के लिए एट्रैक्टिव है। हमें जो रिपल्सिव की बात की ना अभी, यही हमें देखना है। ये तो चलो, तो ये वाली फिगर है आप लोग ड्रॉ करनी है। पहले तो आपको यहाँ पर जो हमने अज्यूम किया है कि चार्ज कहाँ पर रखा है, चार्ज का पोजीशन वेक्टर क्या है और डायरेक्शंस क्या है, वो हमें यहाँ पर डिनोट करना है। ये जो एक्स वाई जेड है वो तो किसी भी तरह आप ले सकते हैं। ओके, उसका कोई वो नहीं है। सो एज शोन इन फिगर लेट R1 R2 बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1 Q2, ये वाली बात लिखनी है, Q1 Q2 रिस्पेक्टिवली इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहाँ पर जो R1 R2 है वो Q1 Q2 के पोजीशन वेक्टर है, ये बात लिखनी है। ओके, लेट R1 बी द यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम Q2 टू Q1। सो R यूनिट वेक्टर नहीं, यहाँ पर लेट R12 बी द वेक्टर, ये यूनिट गलत लिखा है। ओके, R12 बी द वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम Q2 टू Q1। तो यहाँ पर जाने वाला Q2 से इस तरफ जाने वाला जो वेक्टर है उसका नाम भी हमने यहाँ बता दिया, और उसे हम कैसे लिखेंगे वो भी हम बता देंगे। R12 मतलब R1 माइनस R2 लिखेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू बाय द चार्ज Q2। तो कौन से चार्ज पर फोर्स लग रहा है, तो Q1 पर। कौन सा चार्ज लगा रहा है, तो Q2, तो उसका नाम रहेगा F12 इज इक्वल टू के Q1 Q2। यहाँ पर 12 लिखा तो सभी जगह 12 लिख देना है। अब ये बताना है कि ये तुमने क्या लिखा है यहाँ पर। तो R12 है वो यूनिट वेक्टर है, तो उसका भी हमें मेंशन थोड़ा करना है। सो R12 इज ए यूनिट वेक्टर, और ये जो सब है ना ये सब नहीं लिखेंगे चलेगा। R12 इज यूनिट वेक्टर ऑफ R12 इन द डायरेक्शन फ्रॉम Q2 Q1, और उसकी जो वैल्यू ये लिखनी है। और अगर वो वैल्यू इनपुट करते हैं तो लास्ट में इक्वेशन हो गया। ओके, ये वाला इक्वेशन चलेगा, आगे जाके ये वाला इक्वेशन भी चलेगा। ओके, बाद में आपको यहाँ पर ये सब छोड़ के बाद में आपको लिखना है द कूलम्बियन फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 कैन बी गिवन बाय रिप्लेसिंग 1 2 इन द इक्वेशन। यहाँ पर ये भी गलत लिखा है बुक वाले भी। द कूलम्बियन फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। ओके, अब हम सोचते हैं कि Q2 पर Q1 कितना फोर्स लगाएगा, उसका इक्वेशन है, सीधा लिख देंगे, इसमें कोई भी मेंशन नहीं करेंगे कुछ भी यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे और आपकी थियरी जो खत्म हो जाएगी। और लास्ट में आपको लिखना है कूलम्ब्स लॉ एग्रीज विद द न्यूटन्स थर्ड लॉ। ओके, सो इट इज F12, ये सब जो है ना वो नहीं लिखना है। ओके, चलेगा। F12 इज इक्वल टू माइनस F21, और आपकी थियरी जो है वो नोटबुक में इस हिसाब से लिखनी है।
सो आप समझ गए होंगे द फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, सो लो कैन बी रिप्रेजेंट इन वेक्टर लो। यहाँ पर आपने जो भी एज्यूम किया है ये वाली फिगर में, और आप जो भी फिगर ड्रॉ करते हो उसमें कि R1 R2 जो है दोनों पोजीशन वेक्टर है Q1 Q2 के, ओके, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। हियर R12 इज द पोजिशनिंग वेक्टर फ्रॉम Q2 टू Q1। उसकी वैल्यू क्या होगी, तो R12 वो R1 माइनस R2 यहाँ पर लिखा था, R1 माइनस R2 रहेगी। और बाद में इक्वेशन लिखना है, उसमें जो यूनिट वेक्टर आए उसका नाम लिखना है R12 कैरेट, तो क्या रहता है वैल्यू, तो R12 वेक्टर का वैल्यू, R12 कैरेट का वैल्यू जो उसको अगर रिप्लेस करते हैं तो जो इक्वेशन बनते हैं वो लिखना है। और ऑपोजिट में अगर Q2 पर Q1 फोर्स लगाता है तो उसका इक्वेशन लिखना है, एंड दस द थियरी विल बी फाइन। सो ये था यूनिट ये था वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ। तो यहाँ पर हम ये बात रखते हैं, और बाद में अगर आगे हम जाएंगे सुपरपोजिशन पर, तो इतना आपको नोटबुक में लिख देना है। तो एमसीक्यू के लिए कोई यहाँ पर इम्पोर्टेंस नहीं है, ये सिर्फ एक थियरी है, और दो थियरी यहाँ तक हमारी हुई, एक स्केलर फॉर्म, द कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म, एंड सिमिलरली इन वेक्टर फॉर्म। तो यहाँ पर हम रखते हैं।